even the ancient cultures and other things. So today's lecture is going to be an amalgamation of whatever has been transpired in the last 10 days of this FDP. I feel you might have realized that how we have to go about, because in the change scenario, we all know that things have changed a lot. The nature of the discipline has changed. And if we discuss it in more detail, we can even conclude that even the nature of the knowledge has changed. And the three parameters which we generally attribute to the knowledge, that is creation, that is innovation, creation of the knowledge, that is innovation, then its preservation, and finally the sharing. The mode of all these three things have changed drastically. And in this change scenario, if you are really in the business of creating the knowledge, then you have to be slightly different from the rest of the world. You have to think out of the box. If you will not be doing this thing and you will be simply concentrating on the conventional one, then it's very difficult. Probably you may not be able to actually contribute to your discipline. That we have to take into account and take it very seriously. So all those parameters which have been illustrated during these 10 days, we have to basically think on them in the dynamic fashion. So whatever has been transpired today probably may not be true tomorrow. That we have to keep in mind. Because these days, creation of knowledge is one thing, but at the same time, more important than this is to learn and then to relearn, and then again relearn. That is what is the need of the hour. हमें पहले सीखना है, उसके बाद उस सीखे हुए को खत्म करना है और फिर दोबारा से सीखना है. Why it is happening? Because the changing things, they are drastically changing the world. Everything is being changed overnight. That aspect must be there. We should not be rigid at all, and especially in a discipline like law, flexibility is the foremost beauty of a personality, of a lawyer, of a law professional. Because if somebody says that you have to abide by the rules, we are having a rule book, we are having the constitution, we are having various acts and other things. And if you simply abide by it, you create a machinery. That machinery will automatically be controlling everything. But it's not like this. Machinery is not going to work. You need a human touch in the law. And that is possible only when you really learn it. You should not take law as the bundle of the words. We have to take the law as a spirit. And then you have to worship that spirit. And your actions should be in accordance with it. The similar thing happens once you are exploring the law. Then again the same thing happens. Our approach should be not only playing with the words, not only manipulating the various statements and interpreting and then misinterpreting and again interpreting. That's not the issue. The basic thing is that we have to basically understand the spirit of the law. In whatever way we are working, whether we are a teacher or we are a law professional in a company or we are a lawyer, this thing is equally important to everybody whosoever is working in this area. Not only this, we are having the integrated approach. I feel in the beginning I gave an example of car. In earlier days, the car was made by an automobile engineer and it was made up of only metals and alloys. केवल लोहा, एल्यूमिनियम ये सारी चीजों से कार बनता था। आज की डेट में आप कार में देखिए सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। लोहा, एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक भी इस्तेमाल होता है, सिरेमिक भी इस्तेमाल होता है और सबसे अच्छी कार वो है जिसमें सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं।
बिल्कुल वैसा ही देखिए हर एक डिसिप्लिन के साथ। आप ये सोचें कि एक अच्छे लॉ प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब तक कि आपको साइकोलॉजी नहीं आएगा, जब तक कि आपको सोशियोलॉजिकल चीजें नहीं आएंगी, जब तक आपको फिलोसफी समझ नहीं आएगी, आप एक अच्छे लॉ प्रोफेशनल नहीं हो सकते। तो जो एक मिथ हमारे दिमागों में पुराने जमाने से आ गया था कि जी नॉलेज का बंटवारा हो गया है, और नॉलेज जो है अपने लॉ वाला लॉ पढ़ेगा, सोशियोलॉजी वाला सोशियोलॉजी पढ़ेगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ेगा, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग पढ़ेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, वो चीजें देखिए धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम लोग साइंस के हैं, हम जब साइंस में पढ़ते हैं तो बिना सोशियोलॉजी के हम साइंस नहीं पढ़ सकते, बिना हिस्ट्री के हम साइंस नहीं पढ़ सकते, हमें चाहिए वो। क्योंकि देखिए जब हमें लर्निंग पैटर्न्स पता करने हैं तो हमें ह्यूमन बिहेवियर भी पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब हम एक साथ समाहित करके चलेंगे, संभवतः तभी हम एक अच्छे लॉ प्रोफेशनल बन पाएंगे। और टीचर की हैसियत से तो देखिए हमारा रोल और भी क्रूशियल है कि हमें बिल्कुल भी अपनी नॉलेज को साइलो में नहीं रखना, हिस्सेदारी नहीं करनी है नॉलेज की। जो नॉलेज हम क्रिएट करते हैं, जो नॉलेज हम एक्सरसाइज करते हैं, जिस नॉलेज का हम प्रयोग करते हैं, वो सारी सबके लिए है, समाज के हर हिस्से के लिए है। ठीक है, लॉ केवल ये नहीं है, लॉ प्रोफेशनल्स के लिए ये नहीं है, पूरी समाज के लिए है, हर एक आदमी के लिए है, हर एक पशु के लिए है, हर एक जीव के लिए है। तो जो एक सार्वभौमिकता वाली बात है, ये देखिए हमें समझनी होगी, और उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए हमें अपने जिंदगी में इस चीज को अंगीकार करके आगे बढ़ना होगा। और यदि हमें किसी रिसर्च को गाइड करना है, किसी बच्चे को करना है, तो वो सारी चीजें आपको एक एक करके बताई गई हैं कि क्या क्या करना है, रिसर्च के कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जैसे डिसिप्लिन चेंज होता है वैसे वैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा सा चेंज होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको बताए गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केवल आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप एक्चुअली करोगे, आपको तभी समझ आएंगे। या भी बिल्कुल ये ऐसा ही सेशन है जैसे कि हमने मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ साइकिल वाला, कि आप लोग साइकिल के बारे में खूब सारा पढ़ लीजिए, खूब किताबें पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर साइकिल चला के देखिए, साइकिल नहीं चलेगी। भले ही आप कितने भी किताबें पढ़ लें, साइकिल नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए तो देखिए आपको एक्चुअली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लॉ बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक आप किसी अच्छे गुरु के साथ बैठ के नहीं करेंगे ना काम, तब तक बात बनेगी नहीं। अब वो गुरु जो है हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी भी हो सकते हैं, प्रोफेसर प्रसाद भी हो सकती है, या प्रोफेसर रंजन भी हो सकते हैं। वो बस आपने अपनी पसंद का गुरु छांटना है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यदि हमने पीएचडी कर ली तो हमें गुरु की जरूरत नहीं है, कभी भी हमें गुरु की जरूरत है। और शायद यही जरूरत है कि इतनी दूर से हमारे जो अध्यापक गण जो ऑलरेडी कई पीएचडी भी हैं वो आए हैं, शायद इसी तलाश में है कि कहीं अच्छा गुरु मिल जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी अपने इन उद्देश्यों में समर्थ होंगे। जरूर हम अपने लिए एक राह तलाशेंगे, और इस एफडीपी के पूरा होने के बाद निसंदेह हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, और हम रिसर्च को कैसे करना है ये एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज के हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैडम प्रोफेसर प्रसाद बोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, सब चीज़ों को बिल्कुल जैसी होती है वैसा कभी नहीं लेना चाहिए। यदि डिफरेंटली लेंगे तभी आप डिफरेंट बन पाएंगे, और तभी आप डिफरेंटली कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।